آئیڈیالوجی از ریلیجن, کہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے ڈفرینس کو, اس بلیف کا ڈفرینس ایکسیپٹ کر لیں گے کہ بھئی جس کا جو بلیف ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, جس کا جو ایمان ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, جس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, جس کا جو ریلیجن ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے, تو آپ کا تنازع ہی ختم ہو جائے گا. جس تنازع پہ ہم سارے بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں جو تنازع ہو رہا ہے, بڑے بڑے کانفلکٹ, بڑی بڑی جنگیں ابھی بھی مذہب کے نام پر ہو رہی ہیں. تو جب ہم دو ان کو یہ سوال میں کھول دوں گی, آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں اور آپ اپنا ڈسکشن شروع کریں. سوال میں کھول دیتی ہوں اور آپ یہ گروپ ادھر بیٹھ کی بجائے چلیے آپ لوگ سارے مل کے ڈسکس کریں, کوئی ایک نہیں کرے گا, ٹھیک ہے جی؟ مچھلی لے آتے ٹھیک نہیں تو ہونا کی چاہیے. روبی میں نیکسٹ سلائڈ کروں سویٹ انالیسس کا 63 بہت زیادہ 40 سے نیچے ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ چل رہی ہے. نہیں نہیں خود کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسروں کو جی 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 بالکل بالکل بالکل. نہیں میں بس ریڈنگ کرا رہا ہوں. ہم نے کام کیا جب ہم اکٹھے تھے فافن میں, اور اس کے بعد بھی اب بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا. تو میں چاہوں گی کہ کرن خود کو انٹروڈیوس بھی کرائیں, اور کرن فیتھ ہارمنی اور ریلیجیس ٹالرنس پہ بات کر رہے ہیں. اب یہ گروپ ورک ہے, آپ پہلے انٹروڈیوس کرا دیں اور اس کے بعد پھر ہم جی, میرا نام کرن پیٹر ہے اور میں ایک آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہی ہوں, ویونگ پیپل ٹو گرو فاؤنڈیشن. اور ہماری آرگنائزیشن کا مقصد ہے پیسفل کو ایگزسٹنس آف ڈائیورس کمیونٹیز, یعنی کہ لوگ جو کہ مختلف مذاہب سے ہیں, مختلف طبقوں سے ہیں, وہ آپس میں مل کے رہیں پاکستان میں, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے آگے مل کے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کرنا اور یہاں پہ امن کو بھی قائم کرنا ہے. سو یہ ہمارا مقصد ہے ادارے کا, اور ہم لال کرتی راولپنڈی میں بیسڈ ہیں. میرا ٹوٹل 22 سال کا ایکسپیرینس ہے اوور آل, اور ٹیچنگ بھی کی ہے, اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس میں 17 ایئرس کام کیا ہے. پیس میں 2010 سے کام کر رہی ہوں, پیس جو سبجیکٹ ہے, اور ابھی میں ایم فل بھی کر رہی ہوں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے ان پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. پہلا پوائنٹ اسلام آباد میں کچھ اچھے حالات نہیں ہیں, یہ جو مذہبی حالات سے ہیں, کہ مطلب اسلام آباد میں کچھ کافی بہتر ہیں, لیکن پنجاب کی نسبت, پنجاب میں کیونکہ لوگ کم ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ان چیزوں کو ابھی بھی پرانی ہی خیالات سے ظاہر کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں اسلام آباد میں تو کافی لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہمیں مزید ضرورت ہے کہ جیسے ابھی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے, یہ اکیڈمی بنائی گئی ہے, اس سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں, اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ آگے اس سے ہم سیکھ کے مزید حالات کو بہتر کر سکیں گے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ پنجاب سائڈ پہ بھی اس چیز پہ زیادہ کام کیا جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب میں اتنا نہیں ہے, لوگوں میں ابھی بھی کافی حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کسی کو کس طریقے سے قتل کر دیا, کسی کو مذہبی حالات سے کیا کر دیا, ابھی بھی چل رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ویک کی بات ہے کہ یہاں پہ پنجاب سائڈ پہ ایک لڑکے کو, وہ کسی کے گھر میں کام کرتا تھا کہ وہ بھینسیں وغیرہ ان کی سنبھالتا تھا, تو اس کو کھیت میں جا کر, میرے پاس ابھی ویڈیو بھی پڑی ہوگی, تو کھیت میں جا کے اس کے کان کاٹے گئے, اس کی یہ داڑھی نوچی گئی, اس کی آنکھیں نکال کے گردن ہیں. ہاں جی,
मजहबी हालात से, मैं जैसे कहते हैं कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हमारे पाकिस्तान में कम से कम 4 मज़ाहिब में कोई ना कोई मतलब ऐसी चीज़ हो कि जब भी कभी कोई मज़हब के बारे में बात हो हम उसको नरमी से, हलीमी से उसको हल करने की कोशिश करें, ना कि ऐसे करें तो जो कोई लोग होते हैं थोड़ी सी उनको ओहदा मिल जाता है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा वो करना शुरू कर देते हैं, एक काम को पौंट के नीचे रोनते हैं इस बात को, और उसको मौका मिल जाता है, वो इसमें कामयाब भी हो जाता है, तो फिर वो मज़ीद बुराइयां फैलाने का सबब बनता है। तो अगर हम इस चीज़ को मजहबी किताब के हवाले से इसको हैंडल करें, किसी की भी मज़हब की, मैं कहती हूँ कि कुरान मजीद है, बाइबल है, हिंदू की गीत वो क्या कहते हैं गीता है, कोई भी मज़हब उसको खोल के देखा जाए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमेशा इसी चीज़ का कहा गया है कि दूसरों छोटों से प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, किसी को अपना अपना मज़हब प्यारा है और किसी का मज़हब गलत बात पे कहता ही नहीं, हमेशा सुलह, अमन, सलामती का दर्स देता है और पड़ोसी से प्यार करने का दर्स देता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि अभी ये मेरे भाई हैं थोड़ा सा, जैसे कि कोई बंदा कह रहा है कि जी आपके कुरान में तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि उसको कहना कि आप इसको सबूत के साथ इसको वाज़ह करें कि जी ये आपने अगर कहा ही है कि ये गलत है तो हमें अपनी किताब में से आप ढूंढ के दें कि ये आप गलत कह रहे हैं, ठीक हो गया। बर्दाश्त करना चाहिए उसकी बात को, और अगर वो गलत कह रहा तो हमें उसको सबूत के साथ उसके सामने पेश करना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाए कि एक घंटा लग जाए, एक दिन लग जाए, तो हमें चाहिए कि उसको सबूत के साथ पेश करना कि जी मैंने गलत नहीं कहा, आप गलत कह रहे थे और आप गलत इस तरह ना करें क्योंकि सारा माहौल फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो बस हेडिंग नजरसानी करके बस थोड़ा सा बोला चाहता टाइम नीचे वाले को बस तकरीबन बातें इन्होंने तो बता ही दी है, कवर कर ली है। खेलते हुए मैच के दौरान या कभी फुटबॉल खेलते हुए या कभी इस तरह की बात पहुँच दी जाती है कि यार ऐसा नहीं ऐसे करो, तो वो टोटल कहने का मकसद यही है कि इस तरह के जो टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं उससे बचा जाए, तकरीबकारी से बचा जाए। तकरीबकारी। नेक्स्ट जी बस भाई आप ही एक्सप्लेन कर दें, फिर अगले ग्रुप को बुलाते हैं। फिर आगे चले इनको बैठ के तालीम के बारे में थोड़ा सा इनको बताने दो, ये उतार या लें, पेज उतार थोड़ा सा बता दें। बाकी सब बैठ जाएं, ठीक है, फिर ग्रुप पे आएगा। इसी में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, और मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं, जो एक मसीही कम्युनिटी से है और मुस्लिम बहन भाई हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम मिल के बैठे हैं, यहाँ किसी किस्म का हमारे साथ डिफरेंस नहीं किया जा रहा, खाना पीना एक है, हम एक जगह खुशी से बैठे हैं और हम लोगों में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि बर्दाश्त करना एक दूसरे को। और शुक्र है खुदा का कि हम यहाँ से यही सीखा है, जिसमें हमने मज़हब पे कभी किसी एक दूसरे के साथ कभी बहस नहीं करनी। अगर किसी ने सवाल कर लिया है तो उसको मोहब्बत के साथ जवाब देना है। अगर आप नहीं दे सकते क्योंकि आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं मज़हबों के बारे में, तो हमें एक दूसरे के मज़हब को ले कर चलना है। जैसे मुस्लिम बहन भाई हैं, हाँ जी हमें कबूल है, क्रिश्चियंस हैं हमें कबूल है, हिंदू हैं, क्योंकि हर किसी का अपना मज़हब है, मज़हब पे कभी बहस नहीं करनी। और दूसरी बात, पाकिस्तान में लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं कि हम बहस करें। हमें सिखाया जाता है जिनके साथ खाना पीना नहीं है इनके साथ ऐसा नहीं करना। ये चीज़ हमने अपने घर से स्टार्ट करनी है, अपने बच्चों को बताना नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम जहाँ स्कूलों में तालीम लेते हैं, अगर हमें स्कूल मुयस्सर नहीं है तो हमें अब दीनी तालीम लेनी चाहिए, मजहबी तालीम लेनी चाहिए, अपने चर्चिज से राब्ते करने चाहिए कि हमें इस बात को सिखाएं। और ये खुदा का शुक्र है क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जो तालीम है उसको हम फॉलो करते हैं। हम लोगों में इतनी ज़्यादा बर्दाश्त की सिखाई जाती है। और मेरा वैसे भी ताल्लुक़ मेडिकल से है, मैं पेशेंट केयर करती हूँ, 22 साल से मेरा तजर्बा है। और मुझे साइको पेशेंट्स पे भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि मैं बर्दाश्त से भरी हुई हूँ। और मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा इसलिए है क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तालीम को फॉलो करना ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा बचपन से मेरा मज़हब भी है। और शुक्र है खुदा उनका कि उनकी तालीम के अंदर उन्हें एक थप्पड़ मारा था लोगों ने, उन्होंने दूसरी अपनी गाल भी आगे कर दी थी। इसी तरह ही हमारे जितने बहन भाई बैठे हैं, हमें ये नहीं सीखना कि हमें इनके साथ बैठने से हमारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, ये वो। इन तालीम को हमें अपने बच्चों से दूर करना है। ये गोरा है, ये काला है, ये सब चीज़ों को प्लीज़ अपने बच्चों को आप लोग सिखाएं, ताकि हमें ये चीज़ को ख़त्म करना है। हम जहाँ बैठे वहाँ मोहब्बत का दर्स दें और इज़्ज़त का दर्स दें, ताकि हम हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करें, तभी हम एक अच्छे पाकिस्तानी अपने आप को कहला सकते हैं। थैंक यू। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ग्रुप पे आ जाए जल्दी से, ग्रुप पे
ताकि हम आगे जी प्रेज़ द लॉर्ड जी, खुदा ताला की तारीफ हो। आप सबको मसीह में सलामती। मैं सबसे पहले पाकिस्तान की ओवरऑल कंडीशन पे बात करूंगा। जो ओवरऑल कंडीशन है वो आप सबके सामने है। जैसा कि अभी रिसेंटली वाकया लाहौर में हुआ है, ठीक है। अब वो एक सादा औरत है और उसने एक लिबास पहन लिया जिस पे अरबी में हलवा लिखा था, जिसका मतलब था खूबसूरत। लेकिन हमारे लोग कम नॉलेज होने की वजह से उन्होंने कहा कि ये एक मजहबी तौहीन है और 300 के करीब लोगों ने उसको घेर लिया। जैसा कि आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि फिर एक पुलिस ऑफिसर आई और वो बड़ी बाहिफाजत उसको लेके गए और बाद में लोगों को पता चला कि ये वाकया क्या है। हमें ओवरऑल कंडीशन पाकिस्तान में अभी रिसेंटली वाकया जड़ावाला का गुजरा, बात और रीज़न को हम देखते नहीं, समझते नहीं और लोग एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं। हमें ये ओवरऑल कंडीशन जो है पाकिस्तान की अभी भी ख़राब है और उसके लिए हमें ये सोचना और समझना है कि हमें अपनी इन ओवरऑल कंडीशन पे कैसे काबू पाना है। सेकेंडली, हम में अपने आप में अदम बर्दाश्त कैसे पैदा करनी है, अच्छी तालीम से, और लोगों में उन बातों की अवेयरनेस दें कि हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। जैसा कोई मजहबी सवाल करता भी है तो भी आपने उसको सुनना है, आपने उसका उस एक्शन को रिएक्शन में चेंज नहीं करना, आपने उसको सुनना है और समझना है। आपने उसको जोशो जज्बात में जवाब नहीं देना। हाँ, बाज़ बातों में दूसरे भी गलत हो सकते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको मोहब्बत से जवाब देना है और जो रियल है उसको बता देना है, ताकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट को कायम रखें और एक दूसरे के साथ चलते रहें। थर्ड पॉइंट ये था, हमें अपने मुआशरे में इन बातों को लेके इसलिए चलना है, ये तालीम हमें अपने घरों से स्टार्ट करनी है। हम पूरी दुनिया को एकदम में बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम उन बातों को अपने बच्चों में, बहन भाइयों के बच्चों में, मैं कहता हूँ ये सबसे पहले जो तालीम है, जैसे माँ को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, वो छोटे बच्चों की जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो वहीं से उसकी तालीम और तरबियत करती है। इसी तरह हमें अपने बच्चों को और घर के बाकी बच्चों की तालीम हमें इसी बात पे देनी चाहिए कि हमें दूसरों से हेट नहीं करनी, नफरत नहीं रखनी, उनकी अदम बर्दाश्त करनी है। पहले आपने सुनना है, समझना है और फिर बोलना है। मेरा फोर्थ पॉइंट है कि इन सारी बातों का हल क्या है, हमें कैसे अपने मुआशरे को चेंज करना है, और वो हम तालीम से चेंज कर सकते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में लोग अभी भी अनपढ़ हैं, बहुत से लोग अभी भी रियल तालीम से वाकिफ़ ही नहीं, ना वो मजहबी से और ना वो दुनियावी तालीम से, ना रूहानी तालीम से। हमें ये चाहिए कि हम ऐसी वर्कशॉप एमफिल इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और डबल मास्टर्स है मेरा, जनरल स्टडीज़ में मैंने एमएससी किया है और आई एम वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और ख़ास तौर पे मैं मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स की जो ट्रेनर हूँ और आई एम आल्सो वर्किंग एज एडमिनिस्ट्रेटर इन NCSW, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, और मैं पिंडी डिवीजन की इंटरफेथ हार्मनी की वॉइस चेयरपर्सन रह चुकी हूँ और आई एम वर्किंग विद ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, और जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो जहाँ पर ये जब मैंने देखा कि एक मुझे टॉपिक नज़र आया, तो क्योंकि मैं एक विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ यूनिवर्सिटी की, तो हमें चाहिए कि ये इसको हम प्रमोट करें। दिस इज़ द मैटर जो कि हमें आम करना है, जिस पे हमारी वर्किंग ना होने के बिल्कुल बराबर है, मतलब हम बताते ही नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन ये आपका इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है कि आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे और ख़ास तौर पे उन अदारों के साथ जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करें। सो आज का जो टॉपिक था उसमें जो 8 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट हाफ जो है वो 4 क्वेश्चंस का वो हो गया। अब जो 5th क्वेश्चन था उसमें ये है कि हमें खुद की बजाय दूसरों की इस्लाह हम करते हैं, तो क्या ये करनी चाहिए? हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है
अपनी नाक को नहीं देख रहे होते। तो हमें पहले अपने बच्चों को एजुकेट करना है व्हाट इज़ द रियलिटी, असल में हकीकत है क्या, और जो आपका तालीम है आप उसको प्रमोट करें। अभी इन्होंने बात की कि हम डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स पे काम करते हैं, ये इन्होंने कहा कि मैं उसमें एमफिल कर रही हूँ, तो वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि आप कंपैरेटिव स्टडीज़ की तरफ जाएं। अब मैं ये समझती हूँ कि जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि हम दूसरे मज़ाहब की अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देते। पहली बात है कि हमारे अपने मज़हब की तालीम भी नहीं है बहुत सारी जगहों पे, तो हमने दूसरों का क्या सिखाना है? तो फिर ये है कि जब बचपन से हमें मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी, फैदर वो कोई भी मज़हब है उसको अपने मज़हब का नहीं पता, तो वो दूसरे के मज़हब का किस तरह से जो वो डिफेंड करेगा या उसको बताएगा या उसको इस्लाह कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था और उसका आंसर है कि एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम हार्मनी को ला सकते हैं इसके अंदर कि हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना चाहिए, भाईचारे के साथ रहने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत है ना? तभी हमारे अंदर एक दूसरे की बर्दाश्त पैदा होगी। और फिर उसके बाद है कि हमें बाहमी शराकती जो काम है उनसे हम बहुत सारे मसाइल का हल कर सकते हैं। इकबाल टाउन के अंदर उससे पहले एक जो है वो ज़िया मस्जिद के अंदर, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन डिवीजन लेवल, इस्लामाबाद डिवीजन, तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमारा जाना होता है। पहले ये ज़िया मस्जिद की चर्च पे अटैक हुआ, कोई पर्सनल तनाज़ा था, ये जड़ा वाला वाक़या से थोड़ी देर पहले की बात है, एक वीक पहले की बात है। और वहाँ पर जो है वो चीज़ों को जब देखा गया तो उसके फ़ौरन बाद इकबाल टाउन के अंदर ये हुआ। अब उस डिज़ास्टर को जैसे आपने कहा कि हुआ ही ना जाए, होने ही ना दिया जाए, उसको रोकने के लिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर जो है वो मौलवी भी हैं और जो हमारे पास्टर्स हैं वो भी हैं, कम्युनिटी के जो बाअसर अफराद हैं वो भी हैं। तो इस तरह की कमेटीज़ बननी बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ पर ये पता चला जी किसी ने पेजेस ऊपर कहीं आपस में वो दो पोर्शंस में कन्फ्लिक्ट था और उन्होंने एक में क्रिश्चियन फैमिली थी, एक में मुस्लिम थी। अब उन्होंने वो ग्रज लेने के लिए पेज कोई अरबिक के बुक के फाड़े और उनको जो है वो जलाया और क्रिश्चियंस के डोर के आगे फेंक दिया। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ खड़ी होने वाली थी, तो उसको रोकने के लिए फ़ौरन से वो कमेटी जो है वो हरकत में आई। जैसे ही रिपोर्टेड हुई चीज़ें सबने मिल के बैठ के बात की और मौलवी साहब ने ये कहा कि ये तो बच्चे को पता ही नहीं है इसका, और ये जो था और वो उसके साथ ये था कि हमारे पास जो कैमराज हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। हर स्ट्रीट के अंदर या अपने घरों के बाहर कैमराज लगे होने चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आए, केसेस आए और वो कैमराज की वजह से जो है वो ख़त्म हुए, क्योंकि उसके अंदर जो फुटेज थी उसमें साफ पता चल रहा था कि कौन कल्प्रिट है, किसने वो चीज़ की है। तो जो उसका था ज़िया मस्जिद वाला, उसमें तो हमने 24 आवर्स से पहले ही कैमराज लगवा दिए, चर्च के अंदर भी और बाहर भी। तो हवाले से कोई भी मसला हल करना तो पहले हमने ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। वो होती हैं हमारी स्ट्रेंथ्स या हमारी ताकत। हमारे पास जो मौजूदा हालत में हमारे पास क्या ताकत है। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। हम सब का जितने भी मज़ाहब हैं अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, पूरा हमें एक सिस्टम खुदा की तरफ से मिला हुआ है और उसके ऊपर हमें जो है वो मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। हमारे कदम लड़खड़ाए ना, अगर कोई और हमारे से क्वेश्चन करता है तो हमारा जो बिलीव ऑफ फिल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं या जिस पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो वाकई ही है। दूसरे की एक्सेप्टेंस मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पर ये कहा गया कि आप दुआ भी करें और साथ में मतलब आप क्रिश्चियन जो प्रेयर है वो भी करें और मुस्लिम प्रेयर भी करें, क्योंकि दो ही यहाँ पर मज़ाहब के 38 लोग बैठे हुए। सो ये एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है और फिर एक दूसरे की सिस्टम की बिलीव सिस्टम की एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिस मज़हब के से भी ताल्लुक़ रख रहे हैं तो मुझे उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, मुझे उसके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं करना। अगर मैं उसको मान नहीं सकता, उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता, तो मुझे उसको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना, मुझे कोई हक नहीं। उसके बाद है कि हमें एक दूसरे को इज़्ज़त देना, पहले उसको एक्सेप्ट करना, कबूल करना। अब भी हम पेरेंटिंग की बात करें और अपनी घर की बात करें, जैसा इन्होंने ये कहा था कि कोई एक दूसरे के खिलाफ ना करे, बहू सास के खिलाफ ना हो, भाई बहन के खिलाफ ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना करें।
تو اسی طرح سے جب ہم اپنی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، باہر سے آنے والے ایک نیو ممبر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی پرابلم نہیں آتی. اسی طرح سے جو بھی ہمارے ساتھ انٹر ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر، اس کو بھی اس کی سارے کاموں کے ساتھ، اس کی ساری چیزوں کے ساتھ ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ رسپیکٹ کرنی ہے ہمیں انسانیت کی. دیکھیے میں ایک اپنی کمیونٹی، اپنی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا، زلزلہ آ جائے، کہیں پہ جو ہے وہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں تو ہم نہیں سوچتے کون کرسچن ہے مسلم ہے، یہ کرسچن کا بچہ ڈوب رہا ہے یا مسلم کا بچہ ہے، سکھ کا بچہ ہے، کس کا بچہ ڈوب رہا ہے. نہیں، وہ بچہ ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے. انسانیت کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، صرف ڈیزاسٹرز کے اندر نہیں، عام روٹین میں بھی. اس کے بعد ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے ڈفرینسز کے ساتھ مل کے بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اس کو تربیت، اس کو اپرچونیٹی، اس کو سراؤنڈنگ ہی ایسی ملی ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لٹل نالج آف ڈینجرس. کام پتہ ہونا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اب ہمارے جو جتنے بھی ریلیجیس رہنما ہیں، whether they are mullahs or they are pastors، پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. جب وہ خود پڑھے لکھے ہوں گے تو وہی اچھے سے آپ کے ریلیجن کو پڑھا سکیں گے. ان کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اس کا ہمارے پاس بہت فقدان ہے، جس پہ ابھی جو ہے وہ ہم نے ایک گورنمنٹ کو اپلیکیشن بھی دی ہے. ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس کی مل گئی ہیں، NOCs مل گئی ہیں. اور یہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے پاس یہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے پاس لیجسلیشن ہوگی اس کی کہ پڑھے لکھے جو ہے پاسٹر ہو، پڑھے لکھے ملاز ہوں، ان کی یہ کوالیفیکیشن ہو، ان کی یہ تربیت ہو، وہ یہاں سے جو ہے انہوں نے اپنے تربیتی کورسز کیے ہوں، ان کا رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جی، وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان میں ابھی تک ہم ریلیجیس ٹالرنس کو اس لیول کے اوپر نہیں لے جا سکے؟ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے بھی ہائٹ لائٹ کی، اس میں سے کچھ میں نے بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اور جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اور آگے ہم سب مل کر ایز اے گروپ، ایز اے بگر گروپ اس ساری چیزوں کے اوپر کام بھی کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ ٹریننگ آغاز ہے، ہمارا سلسلہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اچھا، اس میں سب سے بڑا جو تھا جو لیک آف انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے، جیسے آپ لوگوں نے بھی مینشن کیا کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے پاس اس طرح کی ٹریننگ ورک شاپس نہیں ہوتی، انٹرفیتھ کے اوپر ڈائلاگز نہیں ہوتے جہاں پہ ساری کمیونٹی سے ہم لے کر بیٹھیں. ابھی ہم اسلام آباد کے لیول پہ بیٹھے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈائلاگ کنٹری لیول پر ہوں کہ سارے صوبوں سے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیشن آئے، ان صوبوں کے بھی ہم جو ہیں چیلنجز کو سنیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں، صوبوں میں جا کے بھی ان چیزوں کے اوپر بات کریں. تو یہ انٹرفیتھ کا جو ڈائلاگ پروسیس ہے وہ بڑا ضروری ہے. پھر سیلف سینٹرڈ بائس تھاٹس ہے کہ وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کا جو سیلف سینٹرڈ بائس تھاٹ ہے، جو ہر کوئی اپنی ریلیجن کے بارے میں بائسڈ ہے، وہ ایک بڑی چیز ہے جو کہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہمیں اس چیز کے لیے روک رہا ہے. پھر یہ ہے مس انٹرپریٹیشن آف دا ریلیجن. ہم نے صبح بھی بات کی کہ ملاؤں کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کرنے آتا. جیسے جیسے ہم اویئرنیس دیتے جائیں گے ہم ان کو پوچھیں اسکل ڈیولپمنٹ اب جیسے ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ اور جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے آئی پٹ اٹ رائٹ اوے آن دا سوشل میڈیا تاکہ وہ مارکیٹنگ ہو جائے چیز. اسی طرح سے
मैं स्टेटस पे लगा नहीं हम SCC ये सोशल व्हाट्सएप पे अच्छा चलिए जी आगे चलते हैं। सब अटेंटिव होते हैं कि वो किसी बड़े तनाज़े में ना जा सके ताकि हम उसको खत्म कर दें। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये काम ICT पुलिस का है इस्लामाबाद में, तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। जो अगली हमारी ट्रेनिंग होगी मार्च में जब ये पूरा ग्रुप, तो हम ICT पुलिस के साथ बैठेंगे कि वो हमें बताएंगे कि हम सारा ग्रुप मिलके उनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए। हर सेक्टर में, इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक चर्च भी एक सेंटर हो सकता है, एक मस्जिद भी सेंटर हो सकता है, एक मंदिर भी सेंटर हो सकता है, ठीक है। या तो हम एक बड़ा सेक्टर बना लें, हार्मनी का सेंटर बना लें, ठीक है, और उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं कि उस सेंटर्स में हम कलेक्टिव एक्शंस कर सकते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल के ऊपर, सेलिब्रेशन करने के लिए, फेस्टिवल्स करने के लिए, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। उन सेंटर्स में हम बच्चों के लिए स्टोरी सेशंस भी रख सकते हैं, या हम उनको डिफरेंट मज़ाहिब के बारे में बताएं, एक दूसरे मज़ाहिब की अच्छी बातें बताएं ताकि बच्चे उन चीज़ों की तरफ आ सकें। उन सेंटर्स में हम लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के हवाले से किताबें रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, ठीक है जी। इसके अलावा हम उनकी पॉलिटिकल इलेक्टोरल राइट्स के ऊपर एजुकेशन भी कर सकते हैं, यूथ की कर सकते हैं, उनको बताएं कि अपनी वॉइस रेज करें। हमारी बहुत ही सप्रेस्ड किस्म की कम्युनिटी है, हमारे लोग बहुत सारी जगहों के ऊपर अपना दिल मार देते हैं, अपनी चुप कर जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। हमारी घरों में औरतें वीक पड़ जाती हैं, माएँ बहनें वीक पड़ जाती हैं मर्दों के सामने। फिर हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पिदरशाही निज़ाम है, जो मर्द हजरात हैं उनकी ज़्यादा चलती है, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब माँ बाप। अच्छा, एक चीज जो हम सुबह से कह रहे हैं और ये आपने जरूर करना है, और इस चीज को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि आपने ब्रेन वॉश करना है अपने घरों में, अपने बच्चों को, हर जगह पर। आप देखें बड़े सगीर पाक को हिंद क्यों डिवाइड हुआ कि तब जब they were the people from the western countries, they came for trade, they have different perception, so कुछ लोग कैसे, तो हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स से निकलना है, हर हाल में निकलना है। हमने अब वेस्टर्न कंट्रीज को भी बताना है कि आप भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स से निकलें। ये डिवाइड एंड रूल हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा, ये फर्दर दुनिया को डिवाइड कर रहा है। हमने अपने बच्चों का ब्रेन डिवाइड एंड रूल से खत्म करना है कि बेटा डिविजन्स कहीं पे भी काम नहीं आएंगी। What actually work the unity and diversity। आपने अपने बच्चों के ब्रेन को नरिश करना है यूनिटी से और डाइवर्सिटी से, कि बेटा यूनाइटेड हो जाओ और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लो और रिस्पेक्ट कर लो। सो दिस इज समथिंग, दैट इज द मैसेज ऑफ द डे जो आपने घरों में लेके जाना है कि डिवाइड एंड रूल खत्म करना है। घरों में भी नहीं डिवीजन लेकर आनी है, दफ्तरों में भी डिवीजन नहीं लेकर आनी है, गली मोहल्लों पे भी डिवीजन लेके नहीं आनी है, कहीं पे भी डिवीजन नहीं लेके आनी है। हर जगह हमने यूनिटी से, हमने इकट्ठे होके चलना है। और जब हम इकट्ठे, हम हर एक को अपनी इज्जत समझने लग जाएंगे, अपनी घर की माँ बहनों की जब हम इज्जत करेंगे, और जब हम गली मोहल्लों पे जाएंगे लोगों की भी माँ बहनों को अपनी इज्जत समझेंगे, तो हम ये सोसाइटी पत्नी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। हम नॉर्म्स में, हम एथिक्स में, हम मोरल्स में, हम वैल्यूज में हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हम हर एक को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, हर एक को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शुड बी आवर मोटो, कि पाकिस्तान यूनाइटेड है और वो हर तरह की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और यही चीज हमें आगे लेकर चलनी है पीस को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। वो जो पोरस एटीट्यूड है, वो जो डिवाइडेड एटीट्यूड है, उसको खत्म करने के लिए हमें ये एक्शंस इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री इकट्ठी रह सके।
ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو اور اپنی ینگر جنریشن کو ہر قسم کی نفرت سے پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور رسپیکٹ کرنا ہے ہیومینٹی کو ہر جگہ پہ. 2 ورڈ میں صبح سے بول رہی ہوں, ایکسیپٹ کرنا ہے اور رسپیکٹ کرنا ہے, ہیومینٹی کو رسپیکٹ کرنا ہے. So that is the thing, that is the motto of the day جو آپ نے اس کو لے کر جانا ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے ایکسیپٹ, آپ کو سمجھ آیا یہ کیا آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں بیٹھ کے, کیا کھائیں, کس کس کو سمجھ آیا؟ میں ادھر آ جاتی ہوں, کہیں آپ کو آیا تو میں سمجھا دیتی ہوں. I will be there. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ کرنا ہے بیسکلی کہ آپ نے اپنے اگلے پورے سال کا پلان دیکھنا ہے. کچھ تو میں نے آئیڈیاز آپ کو بتائے کہ کیا ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ, کہ پالیسی لیول کی ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کے لیول کی چیزیں ہیں, وہ بھی ہم ان پہ کام کر رہے ہوں گے. کیریکولم میں کوئی بک ایسی انٹروڈیوس کرا دیں انٹرفیتھ ہارمنی کی, کہ اس کے اوپر ہم کیسے کام کر رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ انٹرفیتھ ہارمنی کے سینٹر ہم ہر ڈسٹرکٹ یا اس کے اوپر ہر سیکٹر میں اگر لے کر آئیں تو وہ ہم کیسے بنائیں گے. آپ اپنے جو پاسٹر صاحب ہیں ان کو کیسے جا کے کنونس کریں گے, ان سے کیسے بات کریں گے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کو کرنا چاہیے ہماری ٹالرنس کے لیے. ٹھیک ہے, تو پروگرام والا چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سوچ لیں کہ بچوں کی اسٹوری سیشنز ہم رکھوائیں گے چرچز میں اس طرح کی. تو اب سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ اب آگے نا اب آئیڈیاز لے کر آئیں. ہمیں صرف آئیڈیاز آپ بتائیں کہ کیا کیا اور ہو سکتا ہے. کون سا گروپ جائے گا, آپ کی کرسچن کمیونٹی کا ایک گروپ بن رہا ہے آگے مارچ میں. سو کم اپ وتھ آئیڈیاز. آج ہمیں آئیڈیاز چاہیے, ایکشن پلان ہم اگلے اس میں, لیکن ابھی ہم برین اسٹارمنگ تو کر لینا اس کی. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی میم ایتھکس میں تو چل رہا ہے, دیکھیں ایتھکس میں تو سوری ایتھکس میں یہ چل رہا ہے کہ جو کرسچن ہے وہ اپنے اس کو بکس کو پڑھیں گے اور جو مسلم ہے وہ اپنی کو پڑھیں گے. لیکن میم کا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا کہ ایسی بک ہونی چاہیے جو دونوں پڑھیں, سارے پڑھے, جس میں سب متفق ہو. جی جی, سب متفق ہو, سکھ بھی پڑھے, بہائی بھی پڑھے. ہاں اچھا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایتھکس جو ہے اس کو مسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نان مسلم جو ہے اس کو پڑھ لیں, اسلامیات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ صرف نان مسلم ایتھکس پڑھیں گے اور اسلامیات صرف مسلم پڑھیں گے. سو میں جو آپ کو شیئر کر رہی تھی سجیشن وہ ہے, تو پھر ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے ایتھکس کی بک. لیکن اگر کسی نے پڑھی ہے تو وہ شیئر کر سکتا ہے. لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا, کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ بچے ڈفرینٹ ریلیجنس کو پڑھیں اور ان میں ایکسیپٹنس آ جائے ریلیجنس کی, دوسرے ریلیجنس کی. وہ کسی کو یہ نہ سوچیں کہ یہ کافر ہے یا یہ رائٹ ریلیجن فالو نہیں کرے. سو ہمارا پوائنٹ یہ ہے. سو آلریڈی اگر ایتھکس میں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایتھکس کو سب پڑھیں. It should be a subject, mainstream subject. ایڈ کروں گی کہ دیکھیے جیسے یہ ون نیشن کا کریکولم آیا تھا تو اس میں جتنی بھی اس کی بکس آئی تھیں اس کے اوپر بھی میں نے ایک کریٹیکل وہ لکھا تھا, اوور ویو دیا تھا. وہ یہ تھا کیونکہ میرا جو فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن ہے, تو پالیسی میکنگ ہے میرا نا, تو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے جتنی بکس ہیں, ایک تو وہاں پر بچیوں نے بہت وہ ویلس کی ہوئی, ٹھیک ہے, اسکارف پہنے ہوئے. پھر دوسرا یہ تھا کہ بچیاں جتنی بھی پکچرز لیڈیز کی ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور میل جو وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جتنا بھی ہے اسٹف, ریلیجیس اسٹف جو ہے وہ اسلامک ہے. جیسا آپ یہ کہہ رہی تھیں وہ کارٹون موویز دکھائیں بچوں کو, آپ سلیبس میں ڈائریکٹ دیکھیے. آپ کو ایک پریشر گروپ, بہت بڑا پریشر گروپ ہے جو آپ کو روکے گا, وہ آپ کو آگے نہیں جانے دے گا. یہ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہیں. دوسرا ہے کہ آپ نے سلیبس کو چینج کروانا ہے, یہ ایک الگ پروسیس ہے, وہ بہت لمبا ایک بڑا پروسیس ہے, اس میں بڑی چیزیں آ سکتے ہیں, بالکل کروا سکتے ہیں. اپنے ریکمنڈیشنز تو دے سکتے ہیں اپنے اداروں کے ساتھ مل کے, جیسے انہوں نے کہا وائلڈ کمیشن کی ہم وہ کریں گے, اسی طرح جو ادارے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہاں ان اداروں سے مل کے ہم کر سکتے ہیں, انڈیویجول نہیں کر سکتے. ہاں جی, آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ مل کے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پالیسی میکنگ میں کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ بہت اس پہ کام کر رہے ہیں پی ٹی صاحب. سو وہ آواز کو لے کے جا سکتے ہیں ہمارے اوپر. سوری کوئی بات یہ دیکھیں نا, پہلے میں بتانے لگی ہوں اوپر جو لکھنے لگی وہ ہے کیونکہ وہ جی 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 بالکل. 3:15 تک آپ کے پاس ٹائم ہے. 3 بجے آپ کی ٹی وی لگ جائے گی, چائے بھی لے لیجیے گا, چائے پی کے
3:20 का 3:30 तक आप आ जाइएगा अपने प्रेजेंटेशंस ले, So ठीक number है? one program इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी भी तस्वीरें बनी है आउट क्लास है बहुत अच्छी एक ऑप्शन दे दिया है क्रिश्चियन जो मुस्लिम के लिए नॉन मुस्लिम के लिए क्या आप लोगों को रखना चाहते हैं आप अपनी बात पूछ सकते हैं उनमें एक चीज़ बड़ी खास है जी बिल्कुल ये कौन सी है इसमें सारी दोबारा से दिनियात को लगा दें, इसमें सारे आ जाएंगे। अगर आप अलग से नहीं एथिक सब पे लागू कर सकते तो आप दिनिया दोबारा से अल्पीनी बच्चे हमारे सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को बताएं कि हम लोगों के दौर में दिन याद हम पढ़ते थे, हमें अरबी पढ़नी पड़ती थी, उसमें एग्जाम दिए हमने, लेकिन अब नहीं पढ़ते थे। हाँ हमारे दौर में हम पढ़ते थे। सबको मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। और इसमें एक और बहुत खास बात जो है वो ये है पहले बनाई गई होती तो शायद इतने तक अब बात ना गई होती। जी नहीं है, बुक्स भी है, सब कुछ है, हर चीज़ है, आपने पढ़ी नहीं। अलाउ नहीं है, ठीक है, एक बर्तन के अंदर खाना है, एक गिलास से पीना है, दिन कबूल है आए नहीं कबूल है। अच्छा देखिए, हमारा जो एक पहला इंडिकेटर है ना वो ये है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स विद, दूसरा ये कि उनको मोबिलाइज करने के लिए गोल्ड मीटिंग्स जैसे अभी आपने बात की कि कुछ लोग मानते ही नहीं, तो हम उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, इंटरफेथ हार्मनी का दर्ज देने की कोशिश करेंगे, मीटिंग्स करेंगे उनका, यानी कि उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखिए, उनके बन। तो ये सेकंड वन आ जाता है हमारा इंडिकेटर में, ये मीटिंग्स हम एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पहले ये मूवीज होती थी, इंडियन की इंग्लिश मूवीज होती थी, तो कोई सेक्सी पॉट्स आता था तो लोग रिमोट था तो उसको आगे करना बीमार होती वो शर्त तुम्हारी बेचारी बीमार होती वो डॉक्टर की बात नहीं जाती कि भाई ये जो चीज़ है ये बच्चों में काम करो, ये उनको कहा जाए कि आप लोगों को कोई मसला हो तो आप अच्छा अब चाहना यहाँ पे आ सकते हैं। बैक टू द वर्क। अभी जैसे कि कहा गया था कि हमारे जो है वो टारगेट्स और किस तरह से हम चीज़ें जो हम आगे प्लान करेंगे, हमारे प्लान्स क्या होंगे 2024 और 25 के। जैसे अब 2024 और 25 हमारे पास पूरा अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट मार्च तक जाएगा, तो वो जो एक साल है पूरा उसमें हमने क्या करना है। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि सवाए हम यहाँ पर, आपको पता है हमारे यहाँ चेंज क्यों नहीं आता, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस इतने सालों से काम कर रही हैं, हमारे पैदाइश से भी पहले की भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो चेंज क्यों नहीं आता? क्यों? इसलिए चेंज नहीं आता कि हम हॉल्स, रूम्स और इस तरह की जगहों पर बातचीत करके जो कुछ सीखा होता है वहीं पे छोड़ के तो चले जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर या जहाँ पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर जाके हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, इसलिए वहाँ पर चेंज नहीं आता। सो इस जो ये ट्रेनिंग है, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो ट्रेनिंग है उसकी खूबसूरती ये है कि इस ट्रेनिंग के साथ ही इन्होंने आपको बता दिया कि आप अपने 24 और 25 के गोल जो उनसे है पूरे साल के वो सिलेक्ट कर लें। आपने करना क्या है, जाके सिर्फ यहाँ पे ये ट्रेनिंग लेके इधर ही छोड़ के नहीं चले जाना। सो उन चीज़ों को सामने रखते हुए एक तो जो इन्होंने डिज़ाइन करके वो चीज़ दी उसके अंदर हमने इसको एक ब्रीफली वो चीज़ करने की कोशिश की है कि सिंपल चीज़ करने की कोशिश की है कि आगे जो है वो उसमें फर्दर जो एक चार्ट बनाया गया है उसके अंदर इसको जो फिट किया जा सकता है। तो होपफुली कोशिश करेंगे कि हम इनको जो वो चीज़ों को सीखें। अब सबसे पहले तो ये है कि फ्रीक्वेंट अवेयरनेस, मैंने पहले भी अपनी उसमें प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस देने के लिए हमें सीखने की भी बड़ी ज़रूरत है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल और जो कम्युनिटी लेवल के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको फ्रीक्वेंट लेवल पे होना चाहिए, जो कि इंटरफेथ हार्मनी के स्पेशली टॉपिक के साथ होंगे। इसके साथ
جو ریلیجیس، اب دیکھیں سب سے مشکل ترین جو طبقہ جس کو پڑھے ہوئے کو پڑھانا ہے نا وہ ہے، اور وہ مشکل ترین طبقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیجیس اسکالرس یا ریلیجیس جو ہمارے لیڈرز ہیں کسی بھی جو ریلیجن سے ہیں، بے شک وہ پاسٹرز ہیں، مولانا حضرات ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور وہ بہترین ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس چیز پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے اور اس طرح کی کانفرنسز یا اس طرح کے ڈائلاگس جو ہے وہ کیے جائیں، ڈیبیٹس جو سے وہ اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں جس کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے اور بڑی پیشنس کے ساتھ، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اسلام آباد ہوٹل کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کا پروگرام ہوا، وہاں پر دے ور جسٹ پروموٹنگ دا اسلام، اور وہ وہاں پر کنورٹیڈ لوگوں کو وہاں پہ لے کے ٹاپک تھا انٹرفیتھ ہارمنی، اور وہاں پر کنورٹیڈ لوگوں کو جو کرسچن سے مسلم ہوئے تھے ان کو لے کے آئے، دے ور شیئرنگ دیئر اون ایکسپیرینسز، اینڈ ون پرسن whose name was Waris Masih, and he was converted into Islam, and now he was working as a scholar of Islam with the name of Waris, Muhammad Waris. He was saying on the pulpit, on the stage, that Christianity is the wrong religion. Is that the thing? کیا وہ اس لیے تھا انٹرفیتھ کو وہ میچ کر رہا تھا؟ نہیں، آپ کو برابری کے بیس پہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے وہاں سے جو ہے مسلم کرسچن سے مسلم ہوئے لوگوں کو بلایا تھا تو وہی پھر اس کنورشن آپ جو ہے وہ ہندوازم میں یا کرسچینٹی کے اندر جو جاتے ہیں لوگ ان کو بھی پھر وہاں پہ بلانا چاہیے تھا۔ بٹ اس طرح کی جو چیزیں کنفلکٹ کریٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، پیورلی جو ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو، ٹھیک ہے؟ سو یہ اس طرح کے ڈائلاگز ہونی چاہیے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، جیسے ہم نے بیچ میں ڈسکس بھی کیا کہ ہمیں اپنے کریکولم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ آتا ہے ہمارا مونٹیسری لیول۔ اگر ہم اپنی کمیونٹی کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں نا لوگوں میں، تو پہلے ہمیں ان چھوٹے بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، پڑھے ہوئے کو پڑھانا ہے۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ پوچھا بھی تھا کہ کیا ہم اس کا نام رکھیں، تو میرے دل میں تو اسی وقت آیا تھا کہ ہم اس کا نام برداشت کے نام سے ہم رکھ سکتے ہیں، ایپ بنا لیں، اس کو آپ چلا لیں۔ خیر آگے چلتے ہیں کہ اسٹوری بکس، جیسے ہم چھوٹی چھوٹی اسٹوریز، الادین کی اسٹوری، اس طرح کی اسٹوریز لے کے آتے تھے نا، اور اب جو ہے وہ ایک پورا ایک ٹاپک، ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں اسٹوری کا ایک پیریڈ ہوتا ہے مونٹیسری لیول پہ، چھوٹے بچوں کے یعنی نرسری پیپ اور کے جی کے لیول پہ، اس میں ہم یہ اسٹوریز انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں فوراً سے۔ اگر ہم انٹرفیتھ کی بک نہیں انٹروڈیوس کروا سکتے تو یہ اسٹوری بک ضرور کریکولم میں شامل کروا سکتے ہیں، اور یہ ایزی ہے کیونکہ میں خود اسکول رن کر رہی تھی، مجھے پتہ ہے کہ یہ آسان ہے سلیبس کا کسی بھی چیز کو حصہ بنانا، لیکن اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہم میٹنگس کس کے ساتھ کریں گے، جو اسکول ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ، اور جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے ساتھ، پرنسپلز کے ساتھ، اور اس میں انوالو کریں گے ہم اپنے جو کریکولم سے ریلیٹڈ یہ جو پبلیشرز ہیں ان کو، جو کہ ہمیں بکس جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ کریکولم کے جو پبلیشرز ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ جس طرح سے موبائل پہ ایک میسیج کرونا کے دوران میں چلتا رہا، یا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے اس میں ایک میسیج جو ہے اویئرنیس کا آتا رہتا ہے، جیسے کینسر کی کیمپین ہوئی تو کینسر کا آنا شروع ہو گیا، ہاتھ دھونے کی وہ چلنا شروع ہوگی، آج بھی ایک وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک میسیج موبائل کے اوپر جیسے ہی کوئی کال ڈائل کرتے ہیں لوگ تو زبانی لوگوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، کہ ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ اس کے بعد ہے کہ میں نے ایک بک، آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک دینیات کی ایک بک ہوتی تھی، اس کے اندر ڈفرینٹ ریلیجنس کی جو ہے وہ انٹروڈکشن جو ہے وہ موجود ہوتا تھا، وہ پرائمری تک جو ہے وہ چلتی تھی، اس کے بعد وہ فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آگے دینیات جو ہے وہ چلتی تھی، اس کے اندر ڈیٹیل جو ہے وہ آنی چیزیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے ایک کامن پریکٹسز، اب جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر شامل کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے انٹرفیتھ ہارمنی پہ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو، آپ کو پتہ ہے ٹائٹل اور ورڈ چینج کرنے سے بہت چیزیں جو وہ سوٹ یعنی سموتھ ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے، ایکسیپٹنس کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں نے ایک ریکمینڈ کیا کہ اگر ہم اس کو بک کو نام دے دیں کامن پریکٹسز آف ریلیجنس، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں کمیونلٹی جو ہماری کامن چیزیں ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، تو اس میں ایک آپ کا کمپیریٹیو چیزیں آ جائیں گی کہ کون کون سی چیزیں کامن ہیں ہمارے مذہب میں، اور بیسک وہی اخلاقیات، بیسک وہی چیزیں ہیں۔ ہر ایک مذہب جو ہے وہ چوری سے، گناہ سے، زنا سے، جھوٹ سے،
माँ बाप की नाफरमानी से, हर एक मतलब बेसिक जो बेस लाइन है ना वो हर एक मज़हब की वही है, यानी जितनी इल्हामी कुतब हैं उनकी बेस लाइन वही है, तो वो हमारी इखलाकियात उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। और वो बुक का नाम हो कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन्स, और ये इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए करिकुलम के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें ना तो मजहबी लीडरान को चुभेंगी कि क्यों आप निकाल रहे हैं भाई, इस्लामियात को रिमूव नहीं करा सकते। ये मत सोचे कि हम इस तरह का कोई जो है वो कोई भी ऐसी सिफारिश पेश कर सकते हैं कि जिस पे अमल हो। फिर अगला है रिमूवल ऑफ हेट स्पीचेस फ्रॉम बुक्स। किताबों के अंदर से ये कि कुफर है, फलां काफिर है, इस तरह के वर्ड जो ख़त्म करवाने चाहिए, फिर आप जो है वो चेंज लेके आ सकते हैं। फिर इसमें यह है कि जो आपकी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर देखें बुत परस्ती, एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि बुत परस्ती जो इस्लाम में भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी नहीं है, और लेकिन कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ये ना कहें कि ये गलत है, रॉन्ग है, इस तरह के वर्ड्स ना यूज में। ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं तो भी आप जो है ना अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। और अभी 18वां जो हमारा वो था उसमें है कि प्रॉपर जो है वो हायरार्की और एक स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए चीज़ें, ताकि हर बंदे को पता हो कि उसका क्या करैक्टर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या लेवल है। और अगर कोई ऐसा वाक़या बढ़ जाता है, बढ़ावा पा जाता है, तो हम ये ना करें कि हम कम्युनिटी लेवल पे रहें, बल्कि हमें ऊपर जो है वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी। तो ये स्ट्रक्चर्ड चीज़ें आपके पास, और जिस तरह से आप मैप पे ये मोबाइल पे या उसके ऊपर मैसेज दें, इसी तरह से आप जो है वो जो आप मैसेज चलवाएं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर स्ट्रक्चर भी दें कि इस तरह का हो तो आप कौन कौन सी लेवल पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो टाइम इन चीज़ों पे लगता है, हर एक गोल को अचीव करने में अलग से टाइम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके अंदर ऐसे गोल्स भी हैं जो कि आप 2-3 इकट्ठे भी अचीव कर सकते हैं। और ये होगा हमारी 2024 और 25 का, यानी पूरे साल का स्केड्यूल। और इसमें जो है वो हम कुछ चीज़ें इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी गुड ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्क, और बहुत बहुत तालियां एक दफा बहुत अच्छा जी। थैंक यू सो मच। सो हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी इंटरवेंशन, क्योंकि हमारी इंटरवेंशन जो है वो 12 महीने का टाइम स्पेन जो कवर कर रही है। दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड ओनली वन इंटरवेंशन, दैट इज़ द चेंज इन द एथिक्स बुक। उसके करिकुलम में चेंज हमने चूज़ किया है। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि यानी कि हमारा जो इंटरवेंशन है वो हमने लिखा है कि रिव्यू प्लस रिकमेंडेशन ऑफ प्राइमरी लेवल एथिक्स बुक्स ऑफ पंजाब एंड फेडरल, यानी फेडरल में अलग किताबें यूज़ होती हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक अलग होती हैं। सो इसलिए सबसे पहले जो है हम उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे। दैट इज़ द इंटरवेंशन, ये हमारी एक्टिविटी होगी ओवरऑल जो हम करेंगे, ये करेंगे। देन उसके बाद है आउटपुट क्या होगी इसकी, रिवाइज्ड एथिक्स बुक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। जो हमें आउटपुट उसकी निकलेगी ये सारी एक्टिविटी करने के बाद, वो होगी कि जी एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा जो रिवाइज्ड एथिक्स बुक होगी। और इसका आउटकम यानी इसका जो फ़ायदा है, इसका रिजल्ट क्या होगा कि चिल्ड्रन विल बिकम मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेप्ट ईच अदर रिलीजन्स। सो देयर विल बी रिलीजियस हार्मनी, और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी देयर विल बी हार्मनी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। और बच्चों में, और बच्चों को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं और उनको अगर हम बुरा सिखाएंगे तो वो बुरा सीखते हैं, और अगर हम उनको अच्छी चीज़ें बताएंगे, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो वो बचपन से उसको सीख लेंगे और वो उनमें पुख्ता हो जाएंगे, और बड़े होते हुए फिर वो माशरा जो है वो चेंज होगा। देन इंडिकेटर जो हमने इसका चूज़ किया है वो है नंबर ऑफ मीटिंग्स विद एथिक्स एजुकेशन एक्सपर्ट्स। ये हम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हम खुद से तो कर लेंगे, लाइक इंटरनल मीटिंग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अपना रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एथिक्स पे जो काम करने वाले टीचर्स हैं उनको ढूंढेंगे और फिर उनसे रिव्यू लेंगे,
सेकेंडली रिलीजियस लीडर्स जो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं उनसे पूछेंगे कि आप क्या ऐड करवाना चाहते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट बनेगा उसको हम दोबारा से रिव्यू करवाएंगे एक्सपर्ट से। सो ये नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी, ये हमारा एक इंडिकेटर होगा, और नंबर ऑफ मीटिंग्स विद द रिलीजियस लीडर्स एंड द एक्सपर्ट्स। सो ये हमारे दो इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर है कि हमने आपस में मीटिंग कर ली, कितनी मीटिंग्स की हैं वो हम लिखेंगे प्रॉपरली, और फिर उसके बाद है कि हमने जो एक्सपर्ट से मीटिंग करनी है वो है। देन उसके बाद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाएगा। सबसे पहले होगा कलेक्शन ऑफ एथिक्स प्राइमरी लेवल बुक्स। सो ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि हमारा बजट होगा तो आई एम गोइंग टू परचेज इट, क्योंकि अगर हम किसी से लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा, इसके ऊपर पूरा साल हमारे पास किताबें होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू परचेज फेडरल एंड पंजाब टेक्स्ट बुक एथिक्स की, जो कि 1 से लेके 5 क्लास तक होंगी। और अगर इससे पीछे मॉन्टेसरी में भी हैं किताबें तो हम देख लेंगे, अदरवाइज पहली क्लास से लेके 5वीं तक हम मॉन्टेसरी लेवल पे कोई भी नहीं, ठीक है। फिर फर्स्ट से लेके प्राइम क्लास 5 तक वी आर गोइंग टू परचेज बुक्स। सो ये लेंगे। फिर उसके बाद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद है कि हम 3 मीटिंग्स करेंगे जो हमारी टीम के अमंग होगी, जो अभी हम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहली मीटिंग में हम जो क्लास 1 और 2 की बुक है उसको रिव्यू करेंगे। जो लोग पढ़ सकते हैं वो उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते उनको हम बताएंगे। लाइक अगर मैं लीड ले रही हूँ तो आई एम गोइंग टू मेक प्रेजेंटेशंस, या मैं उनको बताऊंगी कि इन किताबों में ये लिखा है और आपका फीडबैक क्या है इसके हवाले से। सो जो पढ़ नहीं सकते हैं। देन उसके बाद जो सेकेंड डे होगा वो एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, डे 2, उसमें हम क्लास 3 और 4 की किताबों का रिव्यू देंगे, बताएंगे कि इसमें हमने ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपके क्या कमेंट्स हैं, और अपना रिव्यू मैं पहले ही पढ़ के लिख लूँगी। सो जो हमारी टीम मुलाकात करेगी उसमें हम ये चीज़ें शेयर करेंगे। सो ये फुल डे मीटिंग होगी। और तीसरे दिन जो हम डे 3 पे जो मीटिंग करेंगे वो क्लास 5 की बुक फेडरल की और पंजाब टेक्स्ट बुक को हम रिव्यू करेंगे, और फिर उसके ऊपर अपनी अपनी सजेशंस देंगे कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ही ऑब्जेक्टिव रखा और उसको बड़ा डिटेल में किया। इट इज़ अमेजिंग। अगेन क्लैपिंग कर देंगे और ज़बरदस्त। और ये हम करेंगे, और ये आप नोट कीजिएगा कि ये कोई भी आपका काम ज़ाया नहीं जाएगा। मार्च में हम दोबारा बैठेंगे और इसमें से हम जवाब दें, उर्दू में जवाब दें, अपना ऊपर नाम भी लिखें, ठीक है। ये पीछे भी साहब बैठे हैं, ये भाई ये लिखें। अच्छा टीचर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ क्या अच्छा ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, क्या क्या दसा मैं कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਐ ਸਭ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। अच्छा ठीक है, आप उसको रहने दें। आप कमेटी